Top of the hour, the Mahakumbh Mela 2025, the grand spectacle of faith and devotion, which is nearing its conclusion, and the sacred gathering that began on the 13th of January, that has drawn more than 64 crore people over the course of 45 days, which is concluding today on the occasion of Mahashivratri. As the world's largest religious congregation is drawing to a close, more than 1 crore devotees are expected to attend the final Amrit Snan on the last day. As the auspicious period that begins shortly from 11:08 a.m. and ends at 8:54 a.m. tomorrow. Elaborate security arrangements that have been made to deal with massive influx of pilgrims expected to attend the Mahakumbh Mela on the last day, where police personnel that have also been deployed at the bathing ghats and the entire area has now been declared as a no-vehicle zone. But even as the biggest confluence of tradition and faith nears its conclusion, there is no ending to the politics over it. Now, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who had earlier compared Mahakumbh to Mrityu Kumbh, has now sought to question the assertion that Mahakumbh comes after 144 years. According to her, this information is incorrect and overhyped. আমার যদি ভ্রান্তি থাকে তাহলে আপনারা আমাকে সংশোধন করে দেবেন। 144 বছর পরে কুম্ভ হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। মিডিয়াকে কন্ট্রোল করছেন বলে ওয়ান সাইডেড অনেক মানুষ অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন, যে পরিবারগুলো 6টা জায়গায় পদপিষ্ট হয়ে মারা গেছেন। আমি যারা কুম্ভে স্নান করছে আমি কিচ্ছু বলবো না, তাদের প্রতি আমার সম্মান আছে। আমি কিন্তু কুম্ভ স্নান নিয়ে একটি কথাও বলিনি। Now her comments has drawn sharp response from the BJP, accusing the Bengal Chief Minister of trying to undermine and belittle the holy events of Sanatan Dharma. Leader of opposition in Bengal, Shubhendu Adhikari, has slammed her remarks as politically motivative and reflective of her appeasement brand of politics. ये सब कुछ ही गलत है, वो बोलेंगे, लेकिन जो आंखें देख रही हो क्या गलत है? 70 करोड़ लोग यहाँ आके पुण्य स्नान कर रहे हैं, वो गलत है। बस इतना सोच के रखिए कि लोगों ने देख लिया है कि सनातन धर्म की ताकत क्या है। Meanwhile, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has slammed and taken on the UP Chief Minister Yogi Adityanath for his remarks on the Mahakumbh stampede deaths, calling them as insensitive. Akhilesh Yadav, who has accused the UP Chief Minister of insulting the grieving families searching for their loved ones by referring to them as vultures. Training guns at the Chief Minister, Akhilesh Yadav says that just by donning saffron, one doesn't become a true yogi. He even drew a comparison with Ravan, saying that he had disguised himself as a saint. भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो है कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से। BJP, meanwhile, has hit out at the Samajwadi Party chief, where Akhilesh now draws an analogy with Ravan, as the BJP says this is below the belt attack that is being done by the Samajwadi Party time and again, as the issue has also reverberated in the UP Assembly as well. When it comes to the UP Chief Minister, who has taken on the opposition for time and again, questioning the faith and the beliefs of millions of Hindus. However, such opposition remarks have drawn a lot of flack and controversy. Let's listen into how the BJP is now reacting to the Ravan analogy that has been made by the former Chief Minister. यादव जी ने कहा कि भगवा पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की तुलना एक तरह से रावण से भी करने की चेष्टा की है। बात तो सही है, कोई लाल टोपी पहनने से भी अखिलेश यादव जी समाजवादी नहीं बनता। समाजवादी बनने के लिए उस प्रकार का चरित्र भी होना चाहिए और उस प्रकार से जीवन शैली भी होनी चाहिए। पर सवाल ये बनता है कि
झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। कुछ लोगों की वोट बैंक की दृष्टि ऐसी है कि उनको भगवे में केवल आतंक ही नजर आता है। उनको राम भक्तों में ऐसा खतरा नजर आता है कि वो गोलियां चला देते हैं। Well, that is the BJP calling it a below-the-belt attack by the Samajwadi Party, getting us connected from different parts of the country on the occasion of Mahashivratri. Also today is Pradeep Datta from Sambhal. We have Abhishek who is joining us from Prayagraj, और आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा वाराणसी से. But Pradeep, getting a word from you because today is the day as Mahashivratri is being celebrated across the country. However, we are looking at such comments that continue from the opposition side time and again ever since the Mahakumbh began. There has been controversial comments. Yes, you're absolutely right. This is not first time when the opposition party leaders, they have tried to target Mahakumbh, that they have tried to insult Sanatan Dharma. And off and on, we have seen that such statements had been coming from Akhilesh Yadav. And initially he said why one has to go to even Prayagraj for holy dip. So better to perform somewhere else. He said that he said that Ganga water is not pure. So now this time he's trying to compare Yogi Adityanath with Ravana. He said that even Ravana was wearing the saffron. That doesn't mean that he had come to abduct Sita Maiya that time. So that is what actually they are doing. But here, if we talk to the people here on the ground on Mahashivratri, there's an emotional connect with the festival, because right now the place where I'm standing, it's Sambhal, it's a Khagusra area in Sambhal, and you can see this is the temple. This is the 300-year-old temple, and it was only after 46 years the doors of this temple were opened, and finally for the first time. The pictures coming in from the Sambhal Mandir there, where Pradeep is getting us connected with. दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए. दिनेश शर्मा जी, हमने देखा है कि यूपी असेंबली में भी बार बार जिस तरह से महाकुंभ के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मां गंगा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं. अब यहीं पर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कोई भगवा पहनने से योगी नहीं बन जाता है. अब उसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? नहीं, ये बात तो सही है कि भगवा पहनने से कोई योगी नहीं बनता, लेकिन क्रिया कर्म से, धर्म के अनुपालन से, सनातन के रक्षण से और ईमानदारी पूर्ण जीवन बिताने से जरूर योगी कोई होता है. और ये सारे गुण हमारे महाराज जी में हैं. वो न केवल गोरखपुर के एक वो पीठाधीश्वर हैं, बल्कि उन्होंने एक संयमित जीवन के साथ में शासन सत्ता का संचालन किया है. अब अगर कोई कहता है इन शब्दों का प्रयोग, तो निश्चित रूप में जो सनातन के विरोधी हैं, जो कुंभ के विरोधी हैं, जो जाति पात के पक्ष के लोग हैं, उन्होंने जब कुंभ में जाति पात को समाप्त होते देखा, तो अब वो अनर्गल प्रलाप पर उतर आए हैं. जी. मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को अब लोग इनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते. रावण कौन है, राम कौन है, ये तो सबने देखा है. कुंभ और सनातन का रक्षण करने के लिए योगी जी ने जो कृत्य किया है वो मर्यादा रखने का है. और जिस प्रकार कुंभ को असफल हो जाए, कोई बड़ी घटना घट जाए, कोई किसी प्रकार से उसमें कमी निकल जाए, उसका उपहास उड़ जाए, इसका कृत्य किसने किया? वो जो रावणी प्रवृत्ति है वो यही है जी, कि सनातन का भी विरोध है, धर्म के अनुसार संचालन न करना, ये भी रावणी प्रवृत्ति में आता है जी. और मैं समझता हूँ इसका पोषक कौन है ये भी जानते हैं शब्द के उच्चारण से और हमने देखा है कि लगातार जिस तरीके से जो हमला है, अगर एक तरह से देखा जाए, जिसके ऊपर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगर असेंबली में ये मुद्दा लगातार उठाते हुए आए हैं, इसको वो नकारात्मक सोच बताते हुए भी नजर आए. आईपी सिंह जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए. आईपी सिंह जी, अब महाकुंभ तो खत्म होने वाला है, लेकिन विवादित बयान का जो सिलसिला है वो खत्म होते हुए अब नजर नहीं आ रहा है. अब अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि भगवा पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता, तो बीजेपी की तरफ से ये जवाब आ रहा है कि लाल टोपी पहनने से भी कोई समाजवादी नहीं बनता. सवाल ये है कि ये सच है कि एक संत महात्मा पुरुष जो होते हैं उनका आचरण अलग होता है और एक जो राजनेता होता है. सबसे पहले श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, पहले उन्होंने आदित्यनाथ योगी रखा, फिर अपनी चीफ मिनिस्टर आवास पर उसको बदलकर आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ किया गया. सवाल बस इतना सा है कि ये कुंभ आज नहीं सनातन समय से होता आ रहा है, लेकिन जिस तरह से भगदड़ मची, जिस तरह की अव्यवस्था रही, जिस तरह से मल मूत्र
स्नान करने पर जनता विवश हुई, जिस तरह से भीड़ में कुचलकर हजारों लोग मारे गए, उनके परिजन उनके शव को आज तलाश रहे हैं। और जब शव, अपने परिजनों के शव को तलाशने को मुख्यमंत्री ये कह दें कि ये गिद्ध लाश ढूंढ रहे हैं, तो मैं योगी आदित्यनाथ एलियस अजय सिंह बीज से कहना चाहता हूं, क्या गढ़वाल मंडल उत्तराखंड आपके निवासी हैं आप? आपके गांव के कितने लोग मतलब कुंभ स्नान करने आए? आपके गढ़वाल मंडल के कितने लोग कुंभ स्नान करने आए? आपके महाकुंभ की उत्तराखंड तुलना के मृत्यु कितने कुंभ लोग? कहना, फिर माँ गंगा के ऊपर सवाल उठाना कि उनकी सफाई के ऊपर, फिर हमने देखा है लगातार जिस तरह के जो विवादित बयान दिए जा रहे, क्या ये शोभा देता है? कम से कम अगर किसी की आस्था के ऊपर सवाल उठाते हुए क्या ये शोभा देता है? अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी हाँ, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन किसी की आस्था के ऊपर सवाल उठाना कहां तक सही है अखिलेश जी? कौन आस्था पे सवाल उठा रहा है? आस्था पे कौन सवाल उठा रहा है? महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना कहीं सही बात है क्या सर? नहीं, महाकुंभ में जो लोग मर गए वो लोग मोक्ष प्राप्त हो गए, सही बात है? बताएं। जिनके परिजन नहीं रहे, उनके अपने परिजनों को जो लोग ढूंढ रहे हैं वो गिद्ध हैं? आप बताएं, खामोश हो गए आप? देखिए, भाषा की मर्यादा आप देखिए किसने तोड़ी, किस लेवल पे गए। कठमूल्य से शुरू हुआ, कहां तक आया? अरे तो इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को मर्यादा बना के रखनी चाहिए। जब आप किसी पे अनर्गल आरोप लगाएंगे तो उसकी प्रतिक्रिया तो वो व्यक्ति देगा ही जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं। गंगा मैया गंदी है कि नहीं है? अगर आपकी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज कह रही हैं, कोर्ट कह रहा है, और कोई अगर ये बात कह दे तो वो जो है सुअर है, ये सोबरी भाषा है। अरे उसको स्वीकारना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं और ठीक करेंगे। ये बड़प्पन होता है। अगर कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो ये कोई, लेकिन दुर्घटना होने के बाद उस चीज को छुपाना और उस पर लिपापोती करना और सही सूचना नहीं देना, ये गलत है। इस पे आपत्तियां होती हैं लोगों को। तो आप कह रहे हैं महाकुंभ पे नहीं, लेकिन भाषा जब प्रयोग किया जा रहा है और अगर जो इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों की जहां जाने गई हैं, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जानबूझकर उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। धन्यवाद आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईपी सिंह एंड दिनेश जी also of the BJP there. But even as we talk about the political discourse this time that is being witnessed as the Mahakumbh draws to its near conclusion, the Chief Minister Yogi Adityanath has reiterated his giddh or vultures only found on dead bodies remark while speaking in the UP Legislative Council yesterday. जिनको जो दृष्टि दी गई है उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आह्वान किया और सब कुछ प्रयागराज ने आईना दिखाने का काम किया है देश के उन लोगों को जो लोग भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, भक्तों को भगवान मिले, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला। Now, while politics continues on Mahakumbh with the opposition finding faults and raising questions, people from all walks of life continue to pour into Prayagraj to take the holy dip. These include politicians, diplomats, celebrities from across different fields and top Bollywood celebrities that we have often seen. Akshay Kumar, Katrina Kaif, Preeti Zinta, Raveena Tandon, one of the many celebrities have also visited the Mahakumbh and have also lauded the arrangements. Let's get you Preeti Zinta, who has now taken the third holy dip at the Mahakumbh, the spiritual gathering which is set to wrap up with the Amrit Snan on the occasion today of Mahashivratri, which is being celebrated across the country, and sharing her experience from a visit to Prayagraj. The actor says that attending the gathering was a magical and heartwarming experience.
अभिषेक के पास चलते, अभिषेक कनेक्टेड है हमारे साथ, क्योंकि 65 करोड़ से ज्यादा की आबादी बताया जा रहा है कि अभी तक डुबकी ले चुकी है वहां पर, आस्था की डुबकी जिसे कहा जाता है अभिषेक। लेकिन एक्टर्स और हमने देखा इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप पॉलिटिशियंस, प्रधानमंत्री खुद गए थे वहां पर, और हमने देखा है कि अब शायद इस तरह का जो माहौल है फिर कभी देखने को मिलेगा महाकुंभ में, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है। और आखिरी दिन है जो महाशिवरात्रि का भी जो पर्व है धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल 144 साल बाद ये संयोग बना है और ये संयोगों का संगम है। प्रयागराज, जिसको तीर्थों का राजा कहते हैं, वहां पर देखिए संयोगों का संगम होता हुआ नजर आएगा। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। सबकी आस्था है, सबकी भावनाएं हैं, राजनीति इसके ऊपर हो रही है, लेकिन लोगों का अलग कहना है। कैसा लग रहा है व्यवस्था? आप लोग पहुंचे हैं? हम जम्मू कश्मीर से आए हैं। व्यवस्था टॉप क्लास की है और लोग आ रहे हैं बड़े प्रेम से, एक दूसरे से मिलकर के स्नान कर रहे हैं, और हम भी गए थे स्नान करके आए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है ये भाई ये जो है यहाँ पे ये मृत्यु कुंभ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वो कहते ही रहेंगे, उनको कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि जिसकी आदत ही है ऐसे ही करना है, नुक्ताचीनी करनी है, अच्छाई को बुराई बोलना, तो वो तो आदत है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ये सनातन धर्म का महापर्व है और इसे मनाने का जहाँ तक हो बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। हाँ, हम भागलपुर से आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो है प्रशासन का भी जो है लापरवाही भी है। हमने एक साधु को देखा गंगे में बहते हुए। तो हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आ रही है वो प्रयागराज से भी आ रही है, लेकिन एक बार बनारस का भी रुख कर लेते हैं हम, क्योंकि अब थोड़े दिन में होली का भी त्योहार है आशुतोष, वो भी आने वाला है, लेकिन उसकी तैयारियां तो चल ही रही होंगी। लेकिन आखिरी दिन महाशिवरात्रि का किस तरीके से मनाया जा रहा है, तस्वीरों के जरा हमें दिखाइए। पीछे जो हलचल आपके पीछे है, पुलिस की भी व्यवस्था काफी जबरदस्त दिखती हुई नजर आ रही है वहां पर। बिल्कुल अमिता, देखिए बनारस को कहा जाता है कि उत्सव धर्मी शहर, यानी कहा यह जाता है, इस तरीके की मान्यता है कि 7 दिन में 9 त्योहार मनाने की परंपरा है, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्योंकि महाशिवरात्रि का मतलब भगवान भोले शंकर की शादी है, और आज उनके विवाह में शामिल होने के लिए किस तरीके से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग पहुंचे हुए हैं, उसकी जो एक झलक हम आपको काशी विश्वनाथ धाम के ठीक बाहर इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकती हैं कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है। लोग चले आ रहे हैं, देर रात से ही वो लाइनों में लगे हैं। हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि उनका नंबर कब आएगा, जब वो बाबा के धाम में पहुंचेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका दर्शन करेंगे, और इसी कामना के साथ जो लोग हैं वो चले आ रहे हैं। सवाल इसी बात का है कि जो सनातन का जो शंखनाद योगी आदित्यनाथ ने किया था, उसकी जो गूंज है कुछ इस तरीके से सुनाई पड़ेगी, ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। माना यह जा रहा था कि महाकुंभ के दौरान 45 करोड़ लोग जो लोग होंगे वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे, लेकिन वो आंकड़ा तो बहुत पहले ही छूट गया। अब जो ये आंकड़ा है वो लगभग 65 करोड़ के आसपास पता चलेगा कि when it comes to the numbers there, because records that have created this time during the Mahakumbh already crossing the figure of 65 crores, remains to be seen what the actual figure looks like a day after when the Mahakumbh concludes, as the crowd continue to swell when it comes to the major mandirs across the country where today the occasion of Mahashivratri is being celebrated. Abhishek, Ashutosh and Pradeep, thank you very much for joining in. Let's in the meantime shift focus to other news stories.